السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مثنوی سحر البیان کے بارے میں پڑھیں گے جو 1199 ہجری مطابق 1784 یا 85 میں لکھی گئی تھی۔ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میر حسن نے مثنوی سحر البیان و معنی 1199 ہجری مطابق 1784 یا 85 میں آصف الدولہ کے عہد میں جو ہے لکھی تھی۔ مثنوی سحر البیان و معنی جو لکھے ہیں تو بیان کا جادو۔ مثنوی سحر البیان کے کیا معنی ہیں؟ تو پوچھا جاتا ہے کہ مثنوی سحر البیان کے کیا معنی ہیں؟ تو کیا معنی ہیں اس کے؟ بیان کے جادو۔ اور لیکن یہ مثنوی سے 3 کوشچن دیکھو بنتے ہیں کہ اس مثنوی سحر البیان کے معنی کیا ہے؟ وہ سحر البیان کے معنی کیا ہے؟ تو بیان کا جادو، پہلا کوشچن۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کب لکھی گئی تھی؟ تو 1784 یا 85 میں لکھی گئی۔ تیسرا یہ کہ کس کے عہد میں لکھی گئی تھی؟ تو آصف الدولہ کے عہد میں لکھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے۔ مثنوی کے آخر میں قطعات تاریخ ہیں، جن میں سے آخری قطعہ یہ ہے: سنی جب کہ ماہر نے یہ مثنوی تو محجوز ہو فکر تاریخ کی، یہ مصرع پڑا وہیں پا کر فرا ہے اس مثنوی کی یہ نادر طرح، جو 1199 ہجری لکھی گئی لکھا ہے۔ مثنوی سحر البیان بحر متقارب مسمن مقصور یا مقذوف یعنی فعول میں ہے۔ تو یہ اس سے کوشچن بنتا ہے کہ مثنوی سحر البیان کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ تو بحر متقارب مسمن مقصور یا پھر فعول میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثنوی سحر البیان میر حسن کی آخری اور طبعزاد مثنوی۔ ٹھیک ہے، چلا سکتا ہے کہ مثنوی سحر البیان میر حسن کی کیسی مثنوی ہے؟ تو آخری مثنوی ہے۔ کیسی مثنوی ہے؟ طبعزاد مثنوی ہے۔ اسٹیٹمنٹ میں پوچھ سکتا ہے کہ مثنوی سحر البیان کیا طبعزاد مثنوی ہے؟ تو ہاں، آخری اور طبعزاد مثنوی ہے۔ مثنوی سحر البیان گلکرسٹ کی فرمائش پر میر شیر علی افسوس کے مقدمے کے ساتھ 1805 میں ہندوستانی پریس کلکتہ سے چھپی۔ یہ کام فورٹ ولیم کالج کی طرف سے ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، 1805 میں لکھی گئی تھی۔ وہ 1805 میں یہ شائع ہوئی تھی، لکھی گئی تھی تو 1784 یا 85 میں۔ ٹھیک ہے، 84 یا 85 میں لکھی گئی تھی، اور ان کی جو وفات ہے وہ 1786 میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ مثنوی سحر البیان کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے؟ یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس سے بھی کوشچن بنتا ہے کہ مثنوی سحر البیان کو کس نے مرتب کیا؟ تو رشید حسن خان نے۔ سحر البیان کو مثنوی میر حسن، مثنوی بدر منیر، قصۂ بدر منیر و شہزاد بے نظیر وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے یہ کہ مثنوی بدر منیر کا قصہ، ٹھیک ہے، بدر منیر و شہزادہ بے نظیر، اس طریقے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ مثنوی سحر البیان کا دوسرا نام کیا ہے۔ سحر البیان میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کے عشق کی داستان بیان ہوئی ہے۔ مثنوی سحر البیان کے دیباچے میں میر شیر علی افسوس نے اسے اس میں بامسمہ مثنوی کیا ہے، اور یہ امپورٹنٹ کال ہے۔ ٹھیک ہے، امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے۔ مثنوی سحر البیان میں اس عہد کی تجدید کشی اور معاشرت کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ کس عہد کی؟ تو آصف الدولہ کے عہد کی۔ مثنوی سحر البیان لکھ کر میر حسن نے ایک قصیدہ کے ساتھ آصف الدولہ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جس کے بدلے ایک دوشالے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اور آج کے سمے میں اس کی یہ اتنی مقبولیت ہے، اتنی زیادہ کہ زیادہ تر ہر سلیبس میں مثنوی سحر البیان جو ہے وہ شامل ہے۔ اور اس وقت کیا مطلب کہ آصف الدولہ ہیں، انہوں نے صرف ان کو کیا دیا تھا؟ ایک دوشالہ ہی دیا تھا۔ اور میر حسن، وہ آصف الدولہ جو ہیں، وہ میر حسن نے ایک مثنوی لکھی تھی، جس مثنوی مطلب ایک مثنوی لکھی تھی میر حسن نے، تو اس مثنوی سے یہ جو ہیں آصف الدولہ جو تھے وہ ناراض تھے۔ انہوں نے شہر کو اس میں شہر کی برائی کی تھی،
इस तरीके से कुछ था। तो और आसिफ उद-दौला इनसे नाराज़ हो गए थे। तो जब नाराज़ हो गए थे तो फिर उन्होंने ये जो है वो मसनबी शहरुल बयान जो है वो आसिफ उद-दौला की खिदमत में पेश की थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ क्या किया था, एक तशाला ही दिया था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शहरुल बयान के मुताल्लिक़ लिखा है कि ज़माने ने उसकी शहर बयानी पर तमाम शोरा और तस्करा नवेशों से महज़र शहादत लिखवाया। और ये स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट है। मीर हसन ने शहरुल बयान की अदबी हैसियत मुतय्यन करने में मिर्ज़ा क़तील की फ़ारसी तारीख़ का हवाला दिया है। गुलजार नसीम के बरखिलाफ़ शहरुल बयान में ज़ायद निगारी जायदा है। शहरुल बयान का दिबाचा शेर अली अफसोस ने लिखा है। और ये इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि शहरुल बयान का दिबाचा किसने लिखा, तो शेर अली अफसोस ने। मरतब किसने किया था, तो रशीद हसन खान ने। शाह कहाँ से हुई, तो फोर्ट विलियम कॉलेज से। कब शाह हुई, 1805 में। लिखी कब गई, 1786 में। ये बातें याद रखनीगा, ठीक है। शहरुल बयान का खुलासा। किसी शहर में कोई बादशाह था, ठीक है, उसे हर तरह का ऐश हासिल था, मगर वो औलाद की नेमत से क्या था, महरूम था। मायूसी और नाउमीदी की हालत में उसने दुनिया तर्क करने की ठानी। नजूमियों और ज्योतिषों को बुलाकर मशवरा किया। उन्होंने उसके यहाँ औलाद होने की पेंशन गोई की और ये भी बतलाया कि बच्चा पैदाइश के 12वें साल आफत व मुश्किलात से दो चार होगा। गो लड़के की जान को कोई खतरा नहीं, मगर कोई परी उस पर आशिक होगी और उसे उड़ा ले जाएगी। नजूमियों की पेशन गोई सही साबित हुई और बादशाह के यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। उसका नाम बेनज़ीर रखा गया, ठीक है। कोई बादशाह था, उसके यहाँ औलाद नहीं थी। नजूमियों को बुलाया जाता है उस दरबार में और वो पेशन गोई करते हैं कि तुम्हारे यहाँ औलाद होगी और 12वें जब साल को होगा तो उसको परेशानी मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा, ठीक है। और उनकी जो पेंशन गोई थी वो सही साबित हुई और उनके बादशाह के यहाँ क्या हुआ, एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम क्या रखा गया, बेनज़ीर रखा गया। सारे मुल्क में खुशियाँ मनाई गईं। चौथे वर्ष दूध छुड़ाकर एक नहायत खुशनुमा बाग में उसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया गया। सो किस्मत नजूमिया की कही हुई तारीख याद ना रही। बादशाह ने उस ख्याल से कि 12 साल बीत गए, शहजादे को महल बुलवाया और महल के बाला खाने में रात गुजारने का एहतमाम किया। हुस्न इत्तेफाक से ये रात 12वें वर्ष में शामिल भी थी। चुनांचे नजूमिया के कहने के मुताबिक माहिर रुकनामी परी का इधर से क्या हुआ, गुजर। जो नजूमिया ने पेशन गोई की थी कि 12वें साल में जो है, जब 12वें साल में इसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो इसकी जो परवरिश है वो एक बाग में की गई थी। अब बादशाह को याद नहीं रहा और उन्होंने जो है बेनज़ीर को महल बुलवा लिया और चुनांचा जो नजूम और ये फिर उसी रात क्या होता है कि माहिर रुखनामी परी का इधर से गुजर होता है। जब वो शहज़ादा जो है वो छत पर सोता है, शहज़ादे को देखकर उस पर आशिक हो गई थी। महारुख नामी जो परी थी जिसका इधर से गुजर हुआ था, वो उस पर आशिक हुई और उसे उड़ाकर कहाँ ले गई, परिस्तान ले गई। महल में शहज़ादे के जाने से जो है वो कोहराम मच गया था। इधर महारुख परी ने शहज़ादे के आराम आसाइश और उसके दिल बहलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन शहज़ादा जो है वो किसी तौर से मानूस ना हो सका। आखिरकार जो है वो महारुख परी ने शहज़ादा पर तरस खाकर उसे कल का घोड़ा दिया और शहरो सियाहत की इजाज़त जो है वो दे दी। उधर जो है वो महल में भी कोहराम मच गया था शहज़ादा के गायब होने की खबर सुनकर। इधर महारुख परी जो है वो दिल बहलाने की हर मुमकिन कोशिश की बेनज़ीर के, लेकिन शहज़ादा जो है वो किसी तरह मानूस ना हो सका। तो आखिरकार जो है वो परी ने उसे क्या दिया, कल का घोड़ा दिया। इसे पूछा जाता है कौन सा घोड़ा दिया, तो कल का घोड़ा दिया। शहज़ादा उस कल के घोड़े पर सवार होकर सुबह शाम तफरीह के लिए निकल जाया करता। एक दिन इत्तेफाक से शहज़ादे का गुजर शहज़ादी बद्र मुनीर के महल के करीब से हुआ।
शहजादा उसके बाग में उतर पड़ा जहाँ बद्र मुनीर भी मौजूद। वो घोड़ा लेकर जब जा रहा था बेनज़ीर तो उसे एक बाग में शहजादी बद्र मुनीर दिखती है और वहाँ पे वो उससे मुलाकात करता है। बेनज़ीर और बद्र मुनीर दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के आशिक के इश्क में जो है वो मुब्तला हो गए और मारूक परी के गयाम में आपस में मिलने जुलने लगे। और जब मारूक को उन मुलाकातों की खबर एक देव के ज़रिए हुई तो वो बहुत नाराज़ हो गई थी और उस मारे गुस्से के शहजादे बेनज़ीर को कोह काफ के रास्ते में पड़ने वाले कुआं चा आलम में कैद कर दिया था। कौन से उसमें? तो कोह काफ के रास्ते में पड़ने वाले कुआं चा आलम में पूछा जाता है किस में कैद किया था? को कुएं में, ठीक है, चा आलम में। शहजादे के हाल से बेखबर बद्र मुनीर जो है वो उसके फ़िराक में बेचैन रहने लगी। अब जब शहजादा बेनज़ीर जो है वो मिलने के लिए नहीं आने लगा तो बद्र मुनीर क्या हुई? बेचैन रहने लगी। सोते जागते उसे शहजादे की शहवतों का ख्याल रहता। उसी दौरान उसने एक रात ख्वाब में देखा कि शहजादा एक कुएं में कैद है और वो सख्त बेकरार हो गई। उसने अपना ख्वाब अपनी सहेली वज़ीर जादी नजमुन निशा को सुनाया। उसकी एक सहेली थी बद्र मुनीर की, नजमुन निशा को बद्र मुनीर पर रहम आया और वो जोगन बनकर बेनज़ीर की तलाश में निकल खड़ी। ये पूछा जाता है कि कौन जोगन बनी थी? तो बद्र मुनीर की सहेली है नजमुन निशा, वो जोगन बनकर निकलती है किसको ढूंढने? बेनज़ीर को ढूंढने। रास्ते में जिन्नों के बादशाह के बेटे फिरोज शाह से मुलाकात हुई। किसकी? नजमुन निशा की। तो फिरोज शाह और नजमुन निशा के हुस्न पर जो फिरोज शाह जो है वो नजमुन निशा के हुस्न पर फरेब्ता हो गया, ठीक है। लेकिन नजमुन निशा ने सिर्फ इस शर्त के साथ उससे मिलने का वायदा किया कि वे शहजादे बेनज़ीर को ढूंढ निकालने में उसकी मदद करें। फिरोज शाह ने जिन्नों को बुलाकर बेनज़ीर की खोज पर मामूर किया और एक सिकंदर नजाद देव ने कुएं से बेनज़ीर को निकाला और इस तरह के फिरोज शाह की मदद से मारूक परी की कैद से बेनज़ीर जो है वो आज़ाद हो गया था, ठीक है। फिरोज शाह और नजमुन निशा दोनों बेनज़ीर को लेकर बद्र मुनीर के महल में आए, क्योंकि उसने नजमुन निशा और फिरोज शाह जो था वो जिन्नों का बादशाह था। जब फिरोज शाह जो है वो नजमुन निशा पर आशिक हो गया तो उसने एक शर्त रखी कि तुम जो है वो बेनज़ीर को ढूंढ निकालो तो मैं तुमसे शादी कर लूँ। तो फिरोज शाह ने जिन्नों का बादशाह था तो उसने जिन्नों का ये काम पे लगा दिया और फिर ये क्या किया? बेनज़ीर को आज़ाद करा दिया कुएं से और वो बद्र मुनीर को महल में आ गए, ठीक है। बद्र मुनीर का बाप मसूद शाह, याद रखना बद्र मुनीर का बाप का क्या नाम था? मसूद शाह। बेनज़ीर की शादी का पैगाम दिया। बद्र मुनीर और बेनज़ीर की शादी हो गई। चौथी के दिन नजमुन निशा और फिरोज शाह की भी शादी हो गई। शहजादा बेनज़ीर बद्र मुनीर को लेकर अपने मुल्क वापस हुआ और नजमुन निशा फिरोज शाह के साथ पाकिस्तान चली गई। किरदारों की पहचान। मसनवी में बहुत से किरदार हैं मगर उनमें से 6 बहुत अहम। शहजादा बेनज़ीर मलिक शाह का लड़का और उस किस्से का हीरो है शहजादा बेनज़ीर। शहजादी बद्र मुनीर इस किस्से की हीरोइन है और जो खूबसूरत होने के साथ साथ शेर व अदब का भी ज़ौक़ रखती है। बेनज़ीर के वालिद का क्या नाम था? तो मलिक शाह। और उसके बद्र मुनीर के वालिद का क्या नाम था? मसूद शाह। ध्यान रखेंगे, ठीक है। वज़ीर ज़ादी नजमुन निशा बद्र मुनीर की क्या थी? एक सहेली थी जो एक ज़हीन औरत है, हर मुश्किल में तदबीर पेश करती है। नजमुन निशा का किरदार तमाम किरदारों में ज़्यादा फ़आल, जानदार और दिलकश है। मारूक परी जो शहजादे बेनज़ीर के इश्क में गिरफ्तार रहती है, मारूक परी, और वही शहजादे को कुएं में क्या करती है? कैद कराती है। कैद की किस लिए कर देती है? क्योंकि वो बद्र मुनीर से मिलने लगा था। फिरोज शाह कौन है? तो फिरोज शाह जो है वो जिन्नों का बादशाह है का बेटा है, जो वो उस वक्त नजमुन निशा पर जो आशिक हो जाता है जब वो जौगन के भेष में बेनज़ीर की तलाश में निकलती है। मसूद शाह जो है वो बद्र मुनीर का बाप है। अब पढ़ते हैं मीर हसन के बारे में। नाम है इनका मीर गुलाम हसन और तखल्लुस क्या था इनका? हसन था।
میر حسن جو ہے وہ 1737 میں دہلی کے محلہ شیڈواڑہ میں پیدا ہوئے تھے۔ میر حسن کا جو انتقال ہے وہ لکھنؤ میں 1786 میں ہوا اور محلہ مفتی گنج لکھنؤ ہی میں قاسم علی خاں کے باغ کے پیچھے جو ہے وہ دفن کیے گئے تھے۔ میر حسن کے والد کا نام جو ہے وہ میر غلام حسین تھا اور تخلص زاہد جو اپنے دور کے مشہور و معروف حزب گو شاعر تھے۔ زاہد کون تھے؟ حزب گو شاعر تھے۔ میر حسن کے والد کا کیا نام تھا؟ میر غلام حسین زاہد، ٹھیک ہے۔ میر حسن کے اجداد شاہجہاں کے زمانے میں ہرات سے آ کر دہلی میں آباد ہوئے تھے۔ ان کے جد اعلیٰ کا نام میر امام ہردی تھا۔ میر حسن جو ہے وہ میر ضیاء الدین کے شاگرد تھے۔ سودا سے بھی جو ہے وہ اصلاح لی ہے۔ میر حسن اپنے والد غلام حسین زاہد کے ساتھ فیض آباد آئے تھے اور پھر آصف الدولہ کے زمانے میں جو ہے وہ لکھنؤ آئے تھے۔ میر حسن کی ساری زندگی غربت میں گزری تھی۔ حسینوں کی طرف خاص رغبت تھی۔ مصحفی نے میر حسن کی تاریخ وفات شاعر شعری بیان سے نکالی۔ پوچھا جاتا ہے میر حسن کی تاریخ وفات کس نے؟ تو مصحفی نے۔ میر حسن کے کارنامے: میر حسن نے اردو کا ایک تذکرہ بعنوان تذکرہ شعراء اردو اور ایک دیوان چھوڑا۔ یہ پوچھا جاتا ہے تذکرہ شعراء اردو کس نے لکھا ہے؟ تو میر حسن۔ ان کی مثنویاں ہیں۔ میر حسن نے چھوٹی بڑی 12 مثنویاں لکھی ہیں جو مندرجہ ذیل نقل کلابند، نقل زن فاحشہ، حزب قصائی، نقل قصائی، مثنوی سعدی آصف الدولہ، مثنوی رموز العارفین، مثنوی حزب دہویلی، مثنوی گلزار ارم، مثنوی در تہینات عید، مثنوی در وصف کشف، مثنوی در خوان نعمت، مثنوی شہر البیان۔ قصائد دیکھ لیتے ہیں ان کے۔ میر حسن نے کل 7 قصیدے لکھے ہیں جن میں سے ایک قصیدہ حضرت علی اور ایک حضرت امام حسین کی منقبت میں ہے۔ 2 قصیدے جو ہیں نواب آصف الدولہ کی مدامی ہیں۔ ایک قصیدہ سالار جنگ جواہر علی خاں اور آخر میں ایک علی خان کی تعریف میں ہے۔ تو یہ تھا میر حسن کے بارے میں۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔